So let me start the things where we left. So let me start once again right from the beginning. What is compaction? So new unit I have started. So I started the compaction. So compaction is related to compressibility, but generally we consider compressibility totally related to consolidation. Now, what is compaction and what is consolidation? This in detail I told you, but once again I will repeat. In detail I told you what is compaction and what is consolidation. Actually, what happens when the soil is loose? No, when the soil is loose, its density is reduced and its strength is also reduced. When the soil is loose, so automatically its shear strength is reduced. Loose असला तर बघा तुम्ही. So what we do, we try to make the soil dense. म्हणजे जवळ-जवळ आणायचं आहे soil particle ला. So how it is possible? So this can be done by two methods. One is compaction and another is consolidation. Regarding consolidation, I won't tell you anything. I will tell you about the compaction. So actually what happens in the compaction? Why we do the compaction? Compaction बोलते क्या करते हैं हम? मिट्टी के ऊपर force लगाते. We apply the load. We apply the load, and because of this load, as I told you, soil is made up of solids and voids. Voids में क्या रहते? Air और water रहता. So when you apply the load on the soil, so whatever the air is there in the voids, that air is expelled. That air is expelled. जब air expel होता, तो solid particles नजदीक आते. The best example is आप अपना इसका देखो, ये क्या आप लोग खाते ना, लेज समथिंग लाइक कुरकुरे खाते रहते, उसका पॉकेट देखो, 5 रुपीज में 10 रुपीज में इतना बड़ा पॉकेट दिखता है बच्चों को बताने के लिए. बट व्हेन यू गेट इट एंड ओपन इट, नो, वंस दैट एयर गोज आउट, एंड व्हेन दैट एयर गोज आउट, देखिए कितना क्वांटिटी रहता है उसमें, कितने लेज रहते, कितने चिप्स रहते. सो सेम थिंग इज हियर. सो व्हेन द सॉइल इज लूज हियर, so what we do now is we apply the load on it, and when we apply the load, whatever the air is there in the voids, that air is expelled, and when the air is expelled, the solid particles come nearer to each other, and when they comes nearer to each other, already we are applying the force, they will get close contact to each other. The soil will become dense. The soil will become dense, and once the soil will become dense, its shear strength is increased. Its shear strength is increased. So this is called compaction. And remember, compaction, we do it, it doesn't happen. But whereas consolidation happens, it is a natural process. So what are the differences? I will tell afterwards. So this is all about compaction. If anybody is having doubt in compaction, you can ask, please. And one more thing, yesterday I shared the first chapter entire detail notes in the teaching diary. Apart from that, whoever have given me the email, I have sent to them also. I think Sunil Bhosle, Garad Yuvraj, Shubham Bhagwat, Anjali Gapat, some students, whoever have Anjum. So whoever I have given you the given your email ID, I send them to mail. Otherwise, even in teaching diary also, the link I shared, from that there you can copy, or you can ask from your friends, those who are having, you can share from them. And these are very good notes with problems, everything, derivation, all these things. So please follow that one. Okay. So now coming to next chapter, these chapter notes I will share today itself. Compaction notes भी मैं teaching diary में भी share करूँगा. जिसके मेल है तो उनको मेल को भेज दूंगा. Okay. And the third thing is, yesterday class was there, I think, regarding the classification of soils. खैर थोड़ा लंबा था, 2 घंटे था, थोड़ा बोरिंग भी लग रहा होगा आपको. कुछ लोग ही अटेंड करें, but it was very nice session. Teaching जरा उनका अलग रहता, प्रोफेसर्स का NITTTR के. So that also, those notes, that PPTs are very good PPTs. So those PPTs, I think sir has shared. I told him he has shared those who have registered, and if that also I will share with the
teaching diary. Very good classification of soil, and I will teach you afterwards that classification of soil based on that PPT only. This is a very important topic, classification of soil in GATE exams and for practical knowledge. Okay, so these are all the notifications. Now coming to the compaction. So this is the second unit, and remember, कभी कभी क्या है, whenever you apply, I mean appear some exam, few tips I would like to give you. Whenever you appear for some exam, आपको क्या आता ये कोई वहां कोई मायने नहीं रखता, उसको क्या पूछना है वो जो पूछता वो that you should know it. That is the I mean one of the basics of writing any exam. आप जो पढ़ रहे बहुत से बच्चे बहुत मेहनत करते रात दिन गधे के जैसा पढ़ते, वो पढ़ने का मीनिंग नहीं है ना आपको. आप कौन सा एग्जाम पढ़ रहे उसका सिलेबस क्या है पहले देखो, पिछले क्वेश्चन पेपर्स निकाल के उसके एक्सपेक्टेशंस क्या है देखो, और किस टॉपिक को कितने मार्क्स, ये भी बहुत जरूरी है. सपोज इफ यू आर प्रिपेयरिंग नाउ फॉर यूनिवर्सिटी एग्जाम, आई विल टेल यू फर्स्ट चैप्टर फ्रॉम द लास्ट 1.5 month I am taking. From the last 1.5 month I am taking first chapter, and compaction I think in the last class only I started, and in the next class most probably, or in the next class after 2 more class definitely I am going to complete this. But remember, in the university examination, compaction and first chapter are having same weightage, and compaction you can prepare by sitting 2 hours, where I know lengthy formulas are there, nothing to, some few topics are there, and that only the questions are asked with generally. But in case of first chapter, you see so many definitions, so many derivations, so many formulae, then so many practicals. All practicals are in first chapter only. Liquid limit, plastic limit, shrinkage limit, sieve analysis, specific gravity, water content. Near about half of the experiments are in first chapter only. And apart from this, soil classification is also there, that I didn't teach you yet. So see the syllabus for the first chapter and see the syllabus for compaction. And hardly, I will tell you, in the university exam, one question you will get. And और एक बोलूं मैं आपको ऑफलाइन एग्जाम में compaction में एक ही ग्राफ है, इसमें एक ही टाइप के प्रॉब्लम है, and you will get that graph. You will get that graph, sure and short question this is. So when you prepare for the university exam, so you give little importance to first chapter, do the compaction perfect. I'm telling you just for university exam. But when it comes GATE exam, see the weightage is more for first chapter. At that time you study detail in first chapter. Of course, without first chapter, other chapters you can't understand. That is the different thing. Are you following me? How to study? So weightage and what type of questions are expected, what is the level. Of course कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में मैं आपको एक और बात बोलता हूँ, वो इतने होशियार रहते, हम आप एक एक्सपेक्ट करते रहते हो, क्वेश्चन पे क्वेश्चन अलग ही टाइप के आते रहते, 6 7 एग्जाम देते सिविल सर्विसेज के, इंजीनियरिंग सर्विसेज के, फिर भी उनको एकदम क्वेश्चन पेपर को अंडरस्टैंड करना मुश्किल है. बट ओवरऑल वी कैन, एटलीस्ट ओवरऑल कौन से मार्क्स का कितना है, कितना सिलेबस कितना है, दैट यू शुड नो. दिस इज वन ऑफ द थिंग्स यू शुड नो इट वेरी वेल. जो पढ़ रहे गधे के जैसा 8 घंटे 10 घंटे पढ़ रहे, हमको लगता बच्चा बहुत पढ़ रहा, but he won't success. So something, there is some deficiency in you that you should avoid. मैं कहाँ गलती करा, मेरी क्या गलती हो रही, अभी still time is there. You are अभी भी आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम के, अभी तो आप स्टार्ट कर रहे. So these things you should know. Okay. So now after this, next thing what I told you, what are the advantages of compaction? Once again, I am repeating all the things. If you listen to me, it is no need of study also. Okay. So what are the advantages of compaction? Compaction increases the shear strength of soil. What happens? Compaction increases the shear strength of the soil. It improves the stability and bearing capacity of soil. It improves the stability and bearing capacity of soil. It improves the stability and bearing capacity of soil. It मालूम है आपको, स्टेबिलिटी बढ़ता, बेरिंग कैपेसिटी बढ़ता. बेरिंग कैपेसिटी क्या है मैं आपको डिटेल में बाद में पढ़ाऊंगा. And then it improves the shear strength. Once again I will tell you,
concrete takes compressive forces very well. Steel takes tensile force very well, whereas soil takes shear strength very well. Soil takes shear strength very well. So because of all these things, improved stability and bearing capacity of soil, increase in shear strength of soil, stability is increased, bearing capacity is increased. So what is reduced? Compressibility is reduced, permeability is reduced. Compressibility is reduced, permeability is reduced. Then load carrying capacity of subgrade soil, whatever in the down is there, that also increases, and settlement is avoided. And because of this swelling and shrinkage, there is volume change, that is also avoided using compaction. Because एक बार soil dense हो गया ना, तो swelling और shrinkage थोड़ा कम होता, पूरा अवॉइड नहीं कर सकते, कम कर सकते. So these are the advantages of compaction. Got it? These are the advantages of compaction. So what happens in the compaction? Shear strength increases, stability increases, bearing capacity increases, load carrying capacity increases. What reduces? Compressibility reduces, permeability reduces. Permeability क्या है मैं आपको बाद में बताऊंगा, एक चैप्टर ही, इसके बाद में वही चैप्टर, वो भी बहुत छोटा चैप्टर. ठीक है, ये और ये इजी है, और आप जिसको सिर्फ 30-35 मार्क्स लेके पास होना है, उनके लिए कॉम्पैक्शन और परमेबिलिटी आर द बेस्ट थिंग्स. लिमिटेड टॉपिक्स है, सेम क्वेश्चंस आर रिपीटेड. सो परमेबिलिटी इज रिड्यूस्ड, देन सेटलमेंट इज अवॉइडेड, and volume change is also avoided because of swelling and shrinkage. So these all are advantages of compaction. These are the advantages of compaction. Got it? Clear the thing? Okay. Next. Now, what are the differences between compaction and consolidation? What are the differences between compaction and consolidation? So compaction is a process in which, of course, it is artificially, load is applied here by mechanical means. Mechanical means either tamping is done, or rolling is done, or ramming is done by mechanic means, and air is expelled here. Whereas consolidation is a process where reduction in soil volume takes place due to expulsion of water, pore water. जो पानी रहता वाइड्स में, वो जाने से कंसोलिडेशन बनता, और जो एयर जाने से क्या बनता? कॉम्पैक्शन. एयर जाने से क्या बनता? कॉम्पैक्शन. So that is the difference between compaction and consolidation. That is the difference between compaction and consolidation. और ये आर्टिफिशियली हम लोड यहाँ अप्लाई करते, और ये नेचुरली रहता. एक बिल्डिंग है, बिल्डिंग के नीचे फाउंडेशन है, फाउंडेशन में सॉइल रहता, वो सॉइल बिल्डिंग का कंटिन्यू लोड लेते जाता. जब लोड कंटिन्यू गिरते जाता, जो भी पानी है धीरे धीरे धीरे, मतलब आप 1-2 दिन में नहीं जाता हो. इट टेक्स इयर्स टुगेदर, मंथ्स टुगेदर, 6 मंथ से 2-2, 3-3 साल लगते. सो दैट पोर वाटर इज एक्सपेल्ड. That pore water is expelled. So this process is called consolidation. This process is called consolidation. So now this is an instantaneous phenomenon. What happens in compaction is, it is immediately happens. आज तुम compaction कर दो, सभी सारे एयर चले जाएंगे. आप compaction कर दो, सारे एयर्स चले जाएंगे आपके, बट इट और compaction हो जाएगा. लेकिन consolidation is a time dependent phenomenon. It takes time. Maximum time is there. It is time dependent phenomena. This is compaction is for unsaturated soil. मैं आपको बता चुका हूं, अगर सैचुरेटेड रहा तो एयरवाइड्स रहते हैं, तो निकलते कहां से? So soil is, or this compaction is always for unsaturated soil, whereas consolidation is for saturated soil. Consolidation is for saturated soil. But then this volume reduction is due to expulsion of air voids. So whatever air voids are there, so that will be reduction is due to expulsion of air voids. Air voids are removed here. Water is removed here. That is, you know it very well.
And here some specified compaction techniques are used. Just I told you, ramming, tamping, vibrating or rolling. Common process is rolling. हम लोग पिच पे उस पे रोल चलाते ना क्रिकेट के पिच पे, that is to compact the soil. And second is it is due to load placed on the soil. ये अपने आप natural process है. So this is very important question to be asked in many examination, viva, everything. What are the differences between compaction and consolidation? What are the differences between compaction and consolidation? I hope till now it is clear. Are you following me, please? If you are following, write yes. Anybody? Or if you I mean कुछ समझ में नहीं आ रहा तो you can ask the doubt also. Yeah, Sonali Shinde is writing yes. So I think till now it is clear. Okay, Mansi, welcome. Very good. Borke, you have to be regular. In the last class you weren't there. So please be regular. And if any doubt is there, you tell me. And I told many times I told you, okay. So it means that most of course strength to come hai, lekin jo hai sun rahe, it means that. Okay. Now next is very important. Again, this topic is also very important. ऐसे कौन से फैक्टर्स है जो कॉम्पैक्शन पे अफेक्ट करते हैं, ऐसे कौन से जो कॉम्पैक्ट है जो कॉम्पैक्शन पे अफेक्ट करते हैं. सो देयर आर द वेरियस फैक्टर्स. वंस अगेन आई विल रिपीट यू. फर्स्ट इज वाटर कंटेंट. Second is amount of compaction. Third is method of compaction. Fourth is type of soil. Fifth is addition of admixtures. The various factors which affect the compacted density are as follows. तो ये जो factors है ये compaction पे बहुत affect करते हैं. कौन कौन से? Water content, amount of, एक एक पढ़ेंगे. पहले वाटर कंटेंट मतलब मैं आपको क्या बोला था कि कॉम्पैक्शन. प्लीज केयरफुली सुनो इस बात को. सुनो, आप कहानी सुने जैसा सुनो, आपको बहुत कुछ समझ में आ जाएगा. मैं आपको क्या बोला था कि सॉइल के ऊपर हम लोड लगाते तो उसके अंदर से वाइड्स में से एयर एक्सपेल होता और वो कॉम्पैक्शन होता. लेकिन देखो इधर मैं आपको एक बात बताता हूं, अगर से सॉइल वाइड्स में एयर है ही नहीं, सारा वाइड पानी से भरा हुआ है, तो सॉइल सैचुरेटेड होगा, तो वहां कॉम्पैक्शन हो सकता क्या? नहीं हो सकता. तो याद रखो, जब भी सॉइल फुल्ली सैचुरेटेड है, एवरी वाइड इज फिल्ड विथ वाटर, देन कॉम्पैक्शन इज नॉट पॉसिबल. कॉम्पैक्शन इज वेरी लो और नील, यू कैन से. तो अब आप बोलेंगे सर क्या वाइड्स में सारे एयर भरे रहने से कॉम्पैक्शन होता? कभी भी नहीं होता. याद होगा, कभी भी नहीं होता. उसको लुब्रिकेशन होना पड़ता. आपको यह मालूम होगा. देखिए, अगर से पूरा भी है ड्राई तभी भी कॉम्पैक्शन नहीं होता, कम होता. और अगर से पूरा पानी से भरा हुआ वाइड्स तभी भी नहीं होता. इसका मतलब क्या है? लुब्रिकेशन के लिए थोड़ा सा सॉइल चाहिए, लुब्रिकेशन के लिए थोड़ा सा वाटर चाहिए. हाँ, थोड़ा. इसीलिए क्या, देखो कभी भी कॉम्पैक्ट करने का रहा तो थोड़ा पानी मारते. आप देखे होंगे घर के सामने आपके, या कहीं कुछ कंस्ट्रक्शन देख रहा होगा तो पहले पानी मार के ऊपर से कॉम्पैक्ट करते. ऐसा क्यों? जब भी आप पानी ऐड करेंगे तो उसका ड्राई डेंसिटी बढ़ते जाएगा. ड्राई डेंसिटी मतलब कॉम्पैक्शन. ड्राई डेंसिटी मतलब कॉम्पैक्शन. व्हेनेवर यू ऐड वाटर, इट्स ड्राई डेंसिटी विल इंक्रीज. फिर और पानी ऐड करो, फिर और ऐड ज्यादा होगा. और पानी ऐड करो, और ज्यादा होगा. More water you add, more dry density, but up to a certain limit, and that limit is called OMC. It is optimum moisture content. It is optimum moisture content. इस लेवल तक आप पानी ऐड करते गए, ड्राई डेंसिटी बढ़ता. और इसको बोलते MDD, इसको बोलते OMC. And this curve is called compaction curve. This curve is called compaction curve. तो ये MDD है, मैक्सिमम ड्राई डेंसिटी. ये है OMC. OMC किसको बोलते हैं? ऑप्टिमम मॉइस्चर कंटेंट. मैक्सिमम पानी है और यहां पर आप डालने से मैक्सिमम ड्राई डेंसिटी आ. एंड दिस शुड बी एज फार एज लो एंड दिस शुड बी एज फार एज हाई. हमको मैक्सिमम ड्राई डेंसिटी आ. अब इस OMC के लिमिट के बाद इफ यू ऐड द वाटर, density will decrease.
डेंसिटी विल स्टार्ट गो ऑन डिक्रीजिंग, जैसा जैसा पानी डालते जाएंगे कम होते जाता। सो दिस इज द कॉल्ड कॉम्पैक्शन कर्व, दिस इज कॉल्ड कॉम्पैक्शन कर्व। मैं और एक आपको फील्ड का नॉलेज जाता हूँ। तो अब आप बोलेंगे सर हमको फील्ड में करना क्या है? तो कभी भी क्या होता मालूम है, सपोज करो आप एक कॉन्ट्रैक्टर है, तो कॉन्ट्रैक्टर कॉम्पैक्ट कर दिए सॉइल, बोले कि सर मैं सारा रोलर चला दिया कॉम्पैक्ट कर, तो इंजीनियर विल आस्क यू कितने परसेंटेज कॉम्पैक्ट हुआ, तो मिनिमम 95% होना चाहिए, तो आप बोलेंगे 97% हुआ, तो 97% कॉम्पैक्ट हुआ, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है आपको सॉइल को लेबोरेटरी में लाना पड़ेगा, सॉइल को लेबोरेटरी में लाना पड़ेगा, उसको कॉम्पैक्शन प्रैक्टिस करना पड़ेगा, वो मैं बताता हूं आपको, लेबोरेटरी में करके बताता हूं आपको। तो वो कॉम्पैक्शन करने के बाद पहले 2% पानी डालेंगे ड्राई डेंसिटी, 4% पानी डालेंगे ड्राई डेंसिटी, 6% पानी डालेंगे ड्राई डेंसिटी, लाइक दिस वी विल ऐड द वाटर एंड फाइंड द ड्राई डेंसिटी एंड वी विल ड्रॉ अ कर्व लाइक दिस एंड वी विल गेट एमडीडी। तो लेबोरेटरी में कॉम्पैक्शन करने के बाद जो एमडीडी आता उसको नोट करो, और ये है y, ये क्या है y। अब मैं क्या करता हूं, एक्चुअली फील्ड में कितना कॉम्पैक्ट हुआ वो मालूम करना है हमको, फील्ड पे कितना ड्राई डेंसिटी है वो निकालना है, फील्ड डेंसिटी ड्राई डेंसिटी। तो वो कैसा निकालते हैं हम, कोर कटर मेथड से या सैंड रिप्लेसमेंट मेथड से। तो मैं कोर कटर वोटर लेकर जाके फील्ड पे जाता हूं जहां पर कंस्ट्रक्शन चल रहा है एंड आई विल फाइंड द ड्राई डेंसिटी। सो दैट ड्राई डेंसिटी इज x. So that dry density divided by maximum dry density is called percentage of compaction. Is called percentage of compaction. और ये एक अच्छे से मतलब कंस्ट्रक्शन के लिए it should be more than 95%. It should be more than 95%. Got it? कुछ प्रॉब्लम है? वाटर कंटेंट इफेक्ट कैसा करता है मालूम हो ना आपको? तो ये आपको मालूम होना चाहिए। जैसे कि आपको समझो 100 मार्क्स का पेपर है, तो एमडीडी इज 100, मतलब 100 आपको लेना ही चाहिए, लेकिन आप लिए कितने 80, तो आपका परसेंटेज हुआ 80/100। द सेम थिंग हियर, एमडीडी एक थ्योरेटिकल है, हम बोलते मैक्सिमम डायसेंटिसिटी थ्योरेटिकल इतना आना चाहिए, लेकिन हम कॉम्पैक्ट उतना करें क्या, वो कैसा मालूम होता? वो मालूम होता ड्राई डेंसिटी से, फील्ड मेथड से, और वो फील्ड मेथड है, वन ऑफ द फील्ड मेथड इज कोर कटर मेथड। One of the field method is core cutter method. Okay, so in this way water content affects the compaction. मतलब आप पूरा पानी से भरा हुआ है तो भी कॉम्पैक्शन नहीं होता, पूरा ड्राई है तभी भी कॉम्पैक्शन मुश्किल है, होता है थोड़ा बहुत लेकिन मुश्किल है। लेकिन जैसे जैसे आप पानी डालते जाएंगे उसका कॉम्पैक्शन डेंसिटी बढ़ते जाता, लेकिन एक अप टू सर्टेन लिमिट ओनली इट इंक्रीजेस एंड दैट लिमिट इज कॉल्ड OMC or optimum moisture content, and the corresponding reading is called MDD or a maximum dry density. Maximum dry density. I hope all these things, this much is clear to you. This is clear to you. Got it? Next is amount of compaction. Next is amount of कॉम्पैक्शन, मतलब कॉम्पैक्शन कितना लगाना चाहिए हमको, कॉम्पैक्शन कितना लगाना चाहिए जिससे कि वो मतलब डेंसिटी आपका ड्राई डेंसिटी बढ़ता, जिससे कि आपका ड्राई डेंसिटी बढ़ता। ओके, दैट हाउ टू गेट दिस वन आई विल टेल यू व्हाइल मेकिंग द कैलकुलेशंस। सो मैक्सिमम ड्राई डेंसिटी, देखिए द इफेक्ट ऑफ इंक्रीजिंग द कॉम्पैक्ट एनर्जी रिजल्ट्स इन इंक्रीजिंग द मैक्सिमम हो, तो आप जितना ज्यादा कॉम्पैक्शन लगा रहे हैं, लेकिन एक लिमिट है उसका, तो कितना लगाना, कैसा कैलकुलेशन करना, आई विल टेल जस्ट इमीडिएट आफ्टर दिस। आई एम फाइंडिंग लैबोरेटरी मेथड ऑफ कॉम्पैक्शन, देयर आई विल हियर। नेक्स्ट इज मेथड ऑफ कॉम्पैक्शन। तो आप किस मेथड से कर रहे हैं, डैम्पिंग कर रहे हैं या रैम कर रहे हैं, रोलर लेके, रोलर मतलब नहीं, रोलर नहीं, आपको रैम मतलब ये हैमर लेके रैम कर रहे हैं उसको, या उसको रोल कर रहे हैं रोलर से, या कुछ एक्सप्लॉइट करके वाइब्रेट कर रहे हैं सॉइल को, तो उस मेथड पे डिपेंड करता। The important thing what matters here is what is the weight of the compact equipment, आप किस मैनर में उसको कर रहे, और टाइम कितना लगा रहे कॉम्पैक्शन को, और एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट और रोलर का और सॉइल का कितना है, ये सभी चीजें मैटर करते फॉर इफेक्ट ऑफ कॉम्पैक्शन। आई होप दिस इज क्लियर टू यू। Okay, then type of soil also it is very well important.
तो याद रखो, वेल ग्रेडेड कोर्स ग्रेन्ड सॉइल attains a much higher density and lower water content, optimum moisture content corresponding to fine grained soils. तो फाइन ग्राइंड सॉइल को पानी बहुत लगता लुब्रिकेशन करने के लिए, ग्रेटर सरफेस एरिया की वजह से। तो इस सरफेस एरिया क्या है मेरे क्या, स्पेसिफिक सरफेस एरिया, ये आपको पता होगा, ये आप पढ़े कंक्रीट में। हाँ, उसके बारे में मैं फिर बताते रहा तो सारे सब्जेक्ट पढ़ाते बैठना पड़ता मेरे को। तो यहाँ पर इतना याद रखो, व्हाट इज कंसर्न विथ यू हियर इज coarse grained soils compact better and have higher density than fine grained soils. Fine grained soils मतलब clay, जिसका पार्टिकल छोटा है। ये आपको क्लासिफिकेशन सॉइल, इसलिए मैं कल अटेंड करो बोला आपको। मेरे ख्याल से ये सेक्शन से कुछ लोग थे, बहुत कम लोग थे, खैर आपको बोर हो गया होगा, लेकिन बहुत अच्छा सेशन था। Then figure shows dry density water content curve for a range of soil types in general coarse grained soils compared to higher density other. वही यहाँ पर बताया, और ये अलग अलग सॉइल्स के लिए GW क्या है, SW क्या है, ML क्या है, ये क्लासिफिकेशन ऑफ सॉइल है। C क्ले के लिए है, L क्या है, H क्या है, ये आपको पता होना चाहिए। सो इस तरह इसका ये है। ओके, देन आफ्टर मेथड ऑफ दिस वन, व्हाट इज नेक्स्ट टाइप ऑफ सॉइल के बाद लास्ट इज एडिशन ऑफ एडमिक्सचर्स। एडमिक्सचर क्या है, हम आपको कल बताया था डिटेल में। अगर से हम कुछ चीजें ऐसे हैं एडमिक्सचर्स, उनको ऐड करेंगे फिर कॉम्पैक्ट करेंगे सॉइल को, तो उसका कॉम्पैक्शन बढ़ जाता, इट्स कॉम्पैक्शन विल इंक्रीज। इतना बताया था मैं आपको। इसके बाद कुछ हिंट्स दिया था जो एमसीक्यूज में आपको पूछते। what are these hints? I will tell you. Water acts as lubricant. Of course, this you know very well. Lubricant मतलब जैसा आपका साइकिल खराब हुआ, गाड़ी खराब हुआ, तो ऑयल छोड़ो बोलते हैं, कॉमन मैकेनिक में बताता आपको। तो उसी तरह यहाँ पर वाटर अगर से आप ऐड करेंगे सॉइल में, तो वो एक एज अ लुब्रिकेंट ऐड करके एयर को एक्सपेल इजीली करता। सो हियर वाटर एक्ट्स एज lubricant. This I told you. Water acts as lubricant. OMC, that is optimum moisture content for clay, is more compared to sand. Optimum value, more value for clay OMC, मतलब पानी ज्यादा लगेगा आपको यहाँ पर कॉम्पैक्ट करने में, पानी ज्यादा लगा, इट मींस दैट। और थर्ड पॉइंट है 100% कॉम्पैक्शन इज नॉट एट ऑल पॉसिबल। बस इट्स ट्रू आल्सो। ऐसा नहीं कि आप जितना एयर है सारा निकालेंगे और कितना भी जोर लगाओ, आप 100% कॉम्पैक्शन नहीं हो सकता। 95% इज डिजायरेबल, लेकिन सब गलत बोलते। 95% भी होना मुश्किल ही है। जो हम लोग एफर्ट लगाते, यहाँ के कॉन्ट्रैक्टर्स करते, यहाँ के इंजीनियर्स रिपोर्ट देते, तो 95%, क्योंकि वी आल्सो गो फॉर कंसल्टेंसी, सो 95% इज आल्सो गेटिंग लिटिल बिट डिफिकल्ट, बट यू कैन समटाइम्स यू विल गेट इट। देन गामा डी इज इक्वल टू जी इंटू गामा डब्ल्यू 1+E, ये फॉर्मूला आपको पता है। जी पता है आपको, ई पता है, तो गामा डी कैसा निकालना, ये फॉर्मूला मैं यहाँ पर इसलिए लिखा हूं क्योंकि ये बार बार यूज हो। इस सब में शॉर्ट में जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं इस चैप्टर में लगते हैं वो लिखा हूं। एनीवे आई एम शेयरिंग ऑल द स्लाइड्स टू यू, ऑल द इंपॉर्टेंट थिंग्स। नेक्स्ट इज गामा डी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वाइड्स रेशियो। वाइड रेशियो ज्यादा रहा, ड्राई डेंसिटी कम रहता है, ये तो मालूम है। खुला खुला ज्यादा रहा तो डेंसिटी कम रहता। ये नजदीक नजदीक रहे, वाइड्स रेशियो कम रहा तो ड्राई डेंसिटी ज्यादा रहता, ड्राई डेंसिटी ज्यादा रहता। ये आपको यहां तक समझ में आया क्या? उसके बाद देखिए क्या क्या चीजें कम होते और क्या क्या चीजें ज्यादा होते बिकॉज ऑफ कॉम्पैक्शन। कॉम्पैक्शन से डेंसनेस बढ़ता, ऑफ कोर्स वी नो इट। कॉम्पैक्शन से स्टेबिलिटी बढ़ता, ऑफ कोर्स वी नो इट। कॉम्पैक्शन से शियर स्ट्रेंथ बढ़ता, कॉम्पैक्शन से बेयरिंग कैपेसिटी बढ़ता। कॉम्पैक्शन से क्या बढ़ता? बेयरिंग कैपेसिटी बढ़ता। ओके, अब और कम क्या होता? कॉम्पैक्शन से वाइड्स रेशियो इज रिड्यूस्ड, वाइड्स रेशियो इज रिड्यूस्ड, and then permeability is also reduced. White's ratio से permeability is also reduced. Compressibility is also reduced. Compressibility is also reduced. So when you reduce the White's ratio, when you make the compaction, wide ratio, permeability, compressibility are reduced.
denseness, stability, shear strength and bearing capacity are reduced. यहाँ पर मैं लिखा हूं, देखो मैं, E means White's ratio, compaction से White ratio downwards कम हो रहा, गामा D means denseness, dry density बढ़ रहा, this is stability, stress, so ये बढ़ रहा, ये shear stress, shear strength बढ़ रहा, ये bearing capacity ये भी बढ़ रहा, ये बढ़ने से ये भी बढ़ता है actually. I have to show you. So these are the things, and this is all about, of course, of what are the more next advantage of compaction is compaction. By compaction settlement is reduced. Settlement बहुत dangerous रहता फील्ड में, याद रखो आप. सेटलमेंट मतलब क्या होता मालूम है आपको? देखिए, जब आपका सॉइल फाउंडेशन में वीक रहता, सुपरस्ट्रक्चर का लोड फाउंडेशन पे गिरते जाता. जब सॉइल वीक रहता, जैसा कि ब्लैक कॉटन सॉइल है, लोड ऊपर का ज्यादा हो गया, ये सॉइल का कैपेसिटी, बेयरिंग कैपेसिटी कम हुआ, तो सॉइल सेटल होने शुरू हो जाता. ये सेटलमेंट हम फाउंडेशन इंजीनियरिंग में डिटेल में पढ़ेंगे. तो कॉम्पैक्ट, अगर से हम फाउंडेशन के सॉइल को कॉम्पैक्ट करके कंस्ट्रक्शन करें, तो सेटलमेंट कैन बी रिड्यूस्ड. ऑफ कोर्स वी कैन नॉट अवॉइड टोटली, बट सेटलमेंट कैन बी रिड्यूस्ड. स्लोप स्टेबिलिटी, देखिए स्लोप, दिस इज वेरी वास्ट, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक इन जियोटेक्निकल इंजीनियरिंग. स्लोप स्टेबिलिटी मतलब क्या है? अब देखिए, अब कॉलेज के पास बॉयज हॉस्टल से ऊपर मेन गेट तक आने तक आपको चढ़ते आना पड़ता ना. तो ये रोड कैसा बना? आपको लग रहा है आप आराम से आ रहे जा रहे सोच रहे, लेकिन ये रोड बनने से पहले देखिए ये लोग, यहाँ पर स्लोप था, उस स्लोप का स्टेबिलिटी मेंटेन करते हुए कंस्ट्रक्शन करना पड़ता वहां पर. तो वो रोड कंस्ट्रक्शन करने से पहले, नहीं तो आप अगर से सही स्लोप स्टेबिलिटी नहीं हुआ वहां पर, तो सारा मिट्टी गिरते जाता. तो कॉम्पैक्शन करने से स्लोप का स्टेबिलिटी भी बढ़ता. दिस इज ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक. एंड ऑल्सो कॉम्पैक्शन इंप्रूव फाउंडेशन कैपेसिटी. Also compaction improves foundation capacity. कैपेसिटी, फाउंडेशन का कैपेसिटी भी बढ़ाता. और इट प्रोवाइड साइट यूनिफॉर्मिटी. सारे साइट में सब कॉम्पैक्शन अगर से कर दिया आप, तो सब सेम दिखता, यूनिफॉर्म दिखते जाए. और फाइनली इट रिड्यूसेस हाइड्रोलिक कंडक्टिविटी, हाइड्रोलिक कंडक्टिविटी और परमेबिलिटी. परमेबिलिटी मतलब पानी पास होने का कम करता है सॉइल में से. और पानी, देखिए पानी अगर से सॉइल में रहा, इट इज वेरी डेंजरस इन फाउंडेशन स्पेशली. इसलिए कितना ड्राई रहा उतना अच्छा. पानी अगर से उसमें है, समझो, एक तो क्या होता मालूम है, कंसोलिडेशन से हल्लू हल्लू पानी निकल जाता है एक दिन और सेटलमेंट हो जाता. दूसरी बात, whenever water is there in the soil means its bearing capacity is also reduced. Its bearing capacity is also reduced. So this is all about the compaction first part. The same thing I taught you in the last class also, but today I revised the things. I revised the things, not only revised, in detail I told you. I hope each and everything is clear to you. इसके बाद मैं आपको अभी लैबोरेटरी मेथड्स ऑफ कॉम्पैक्शन पढ़ूंगा. दो इंपॉर्टेंट मेथड्स है, उतना पढ़ेंगे तो कॉम्पैक्शन का थ्योरी खत्म. इसमें से ही कुछ ना कुछ थ्योरी पूछता. बहुत छोटा चैप्टर है, बहुत बहुत. और आप बोलेंगे सर प्रॉब्लम बहुत है. प्रॉब्लम भी बहुत नहीं है, प्रॉब्लम्स भी सिर्फ एक ही टाइप के. तो एक बात और याद रखो आज आप, सो प्लीज नेक्स्ट क्लास जब भी है आपका, आई थिंक इट इज ऑन फ्राइडे. अब बीच में 2-3 दिन में क्लास नहीं है, फ्राइडे और सैटरडे. तो फ्राइडे के दिन आप ग्राफ शीट्स लेकर आइए, अपने साथ लेकर आइए. इन द सेंस ग्राफ शीट अपने साथ रखिए, ग्राफ शीट, पेंसिल्स, ऑल दी थिंग्स. और एक ही टाइप का ग्राफ है और वही क्वेश्चन पूछता. आप पिछले 15, 20, 25 साल के किसी भी यूनिवर्सिटी के पेपर निकाल के देखो, वही क्वेश्चन पूछता. द क्वेश्चन इज रिपीटेड अगेन एंड अगेन. तो प्रॉब्लम भी फिक्स है, एक ही टाइप का है, थ्योरी भी कम है. जिसको सिर्फ पास होना है उसके लिए ये बहुत वरदान है आपके. दिस इज द बेस्ट चैप्टर. ओके, सो आई होप द थिंग्स आर क्लियर टू यू. तो आपको क्या क्या पढ़ना है? व्हाट इज कॉम्पैक्शन, उसके बाद व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ कॉम्पैक्शन,
what is the difference? This is the, I mean, very important question generally asked in the examination. What are the differences between compaction and consolidation? Consolidation का आपको एक बड़ा यूनिट है, फिर आगे मैं वो बाद में पढ़ाऊंगा. So you should know at this time what are the differences between compaction and consolidation. Apart from this, what are the factors which affect compaction? What are the factors which affect compaction? So water content plays many important role. main role है कितना वाटर कंटेंट डालना जिससे कि मैक्सिमम ड्राई डेंसिटी आ सके, और उस वाटर कंटेंट को क्या बोलते हैं? ऑप्टिमम मॉइस्चर कंटेंट. और उसके बाद अमाउंट ऑफ कॉम्पैक्शन, मेथड ऑफ कॉम्पैक्शन, टाइप ऑफ सॉइल, एडिशन ऑफ एडमिक्सचर्स. सो ये सारे चीजें किसी भी कॉम्पैक्शन को अफेक्ट करती हैं. दिस विल अफेक्ट. Okay, apart from this, all these the things I told you, and these are the advantages of compaction. Once again, okay, now I will stop it here for the first interval. You can have a break of 2-3 minutes. So if you are in need or still time is there, you can ask me. Once again, I remind you, I have shared the entire, I mean, notes of first, very good notes are there in your teaching diary. Apart from that, I sent it to few of the students, and from A section it is Anjum Makandar and Bhosle, Sunil Bhosle, Shubham Bhagwat. I think ये तीनों को मैं भेज चुका हूं. ये तीनों से आप कलेक्ट कर सकते हैं. गर्ल्स अंजुम मकानदार से ले लो, आपको अगर से टीचिंग डायरी में नहीं दिख रहा या नहीं मिला तो बॉयज भोसले और भागवत से ले सकते हैं. ओके, और क्लासिफिकेशन ऑफ सॉइल्स का भी शायद जो रजिस्ट्रेशन करे उनको आया होगा, नहीं आया तो वो भी मैं आपको वहां पर टीचिंग डायरी में अपलोड करता हूँ, और जिनको पूछना है उनको भेजता हूँ. ओके, व्हाट एल्स, एनीथिंग, एनी